السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ خیریت سے ہیں اور باقاعدگی سے آپ ویڈیو لیکچرز ریسیو کر رہے ہیں؟ اور اگر ویڈیو لیکچرز آپ ریسیو کر رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ ان کو گو تھرو بھی کر رہے ہوں گے اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اسی سلسلے کے حوالے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپریٹنگ سسٹم، وچ از ایکچولی دا پارٹ آف یور کورس۔ یاد رکھیے گا بیٹا کہ ہم نے ہر اس ٹاپک کو جو کہ آپ کورس کریکولم کے اندر آپ کی جو کورس آؤٹ لائن یونیورسٹی کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہے، ہم نے ہر اس ٹاپک کو کور کیا ہے اب تک جتنے بھی سیشنز ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پلیز ان ویڈیوز کو بغور دیکھیے گا اور اسی میں سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اسائنمنٹس کے لیول کے اوپر یا پھر پیپر کے حوالے سے پریپیئر کرنے کی اپنے آپ کو اور اپنی نالج کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اگر وہ کوشچن ہو تو پلیز آپ کے پاس ایک گروپ اویلیبل ہے انسٹیٹیوٹ کا، تو آپ اس میں آ کر کے کوشچنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ریلیونٹ کوشچنس۔ آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا، جیسے کہ میں نے ارلیئر کہا آپ کو، دیٹ از دی آپریٹنگ سسٹم۔ تو پہلی چیز اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں تو آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ایک ورڈ میں نے او ایس لکھا ہوا ہے۔ تو او ایس از دی ایبریویشن، یہاں ہم او ایس بولیں یا پھر ہم آپریٹنگ سسٹم بولیں، دیٹ مینس دا سیم تھنگ، ٹھیک ہے؟ اکثر کہیں آپ کو ورڈ او ایس لکھا ہوا نظر آئے گا، کہیں آپ کو ورڈ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو او ایس بولا جائے یا آپریٹنگ سسٹم بولا جائے، دیز آر دا ٹرمس وچ کین بی یوز انٹرچینجبلی، ٹھیک ہے؟ تو آپریٹنگ سسٹم کی ہم بات کریں یا اسی طرح سے آپریٹنگ سسٹم کے لیے ایک اور ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر۔ جی ہاں، جس کو ہم کہتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر۔ تو تین چیزیں ہم نے دیکھی، ہم آپریٹنگ سسٹم بولیں، ہم او ایس کا ورڈ استعمال کریں یا ہم سسٹم سافٹ ویئر بولیں، دیٹ مینس دا سیم تھنگ۔ پہلی چیز تو اب یہ ذہن میں بالکل کلیئر کر لیجیے گا کہ اگر پیپر میں کویشچن آ رہا ہے وہاں پہ اگر ورڈ او ایس استعمال کیا ہوا ہے، ورڈ آپریٹنگ سسٹم او ایس لکھا ہوا ہے، آپریٹنگ سسٹم لکھا ہوا ہے یا سسٹم سافٹ ویئر لکھا ہے، تو ان تینوں سے مراد ایک ہی چیز ہے آپ نے، یعنی کہ سوال یا ایگزامینر سوری آپ سے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے، اور پھر جو سوال ہے اکارڈنگلی آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کیجیے گا۔ تو جب ہم آپریٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم از لائک، جس طریقے سے ہمارے پاس ایک، ہم نے انیشیلی چیزوں کو ڈسکس کیا کہ ہم ایک ہارڈ ویئر، ایک باکس مارکیٹ سے پرچیز لے کر کے آتے ہیں جس کو ہم سی پی یو کہتے ہیں۔ جب وہ سی پی یو ہمارے پاس ہمارے گھروں میں پہنچ گئے تو بات ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اس کو پلگ ان کریں اور ہم اس کو پاور پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو ایک بلیک سی اسکرین دکھائے گا، وہ کیپیبل نہیں ہوگا کہ کچھ کام مزید آگے کر سکے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کوئی خراب باکس کھول کر خرید کر کے لے کے آئے ہیں جس کو آپ نے ان باکس کیا اور آپ نے اس کو پلگ ان کیا تو وہ کچھ نہیں کر رہا، ایسا نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ دیٹ از سمپلی a hardware and in order to get functions out of that particular hardware, in order to use the resources, use the peripheral devices and the hardware which is in that particular box، جس کو ہم سی پی یو کہہ رہے ہیں، ہم جب اس کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں، اس سے فوائد حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جو پیریفرل ڈیوائسز جو آپ کے باکس کے اندر مدر بورڈ کے اوپر پلیس کی جا رہی ہیں، یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر سیکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے ورڈ میں آج اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر انہی ٹرمینالوجیز کا استعمال کر رہا ہوں۔ اٹ از ویری نیسیسری، اگر وہ لیکچرز آپ نے کنٹینیوٹی کے اندر ریسیو کیے ہیں، سمجھے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کہا کہ وہ جب ہم ایک باکس پرچیز کر کے لے کر کے آ گئے تو کیا ہوا، وہ چلا نہیں، اس کا کیا مطلب تھا؟ خراب تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ مقصد کیا تھا کہ اس کے اندر اس آپریٹنگ سسٹم کی کمی تھی جو کہ اس ہارڈ ویئر کو جان بخش دیتی، یعنی کہ اس کو زندہ کر دیتی۔ یعنی بات ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اپنے ایک ہیومن آرکیٹیکچر کو دیکھیں، ہیومن انیٹمی کو دیکھیں، تو یہ ہمارا جو پوری ایک ہیومن باڈی ہے، دیٹ از ایکچولی دی ہارڈ ویئر، جس کے اندر ہمارے پاس ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ایوری ہارڈ ویئر، یعنی کہ فار ایگزامپل جیسے کہ ہمارے ہاتھ ہیں، ہم ان کو لکھنے کے لیے، کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے آئیز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے ایئرز ہیں ان کو سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ فنکشنز جو ہیں
जैसे कि हार्ड है, दैट इज द पंपिंग ऑर्गन। तो मकसद हमारे पास क्या है कि एवरी हार्डवेयर इन द ह्यूमन एज वेल जो है वो एक खास फंक्शनैलिटी के अंदर लगा हुआ है, हर एक चीज का अपना एक खास फंक्शन है, ठीक है जी। और इसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम रूह का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह हमारा जो हार्डवेयर जो कि हम कंप्यूटर की शक्ल के अंदर परचेज करके लेकर के आए, वो उस वक्त तक लाइव नहीं होगा जब तक उसके अंदर रूह नहीं फूकी जाएगी, जब तक उसके अंदर रूह नहीं जाएगी। और उस रूह का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा किसी भी कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर, यानी वो बॉक्स या जो कंप्यूटर जिसको आप कोर i5 कोर i7 के नाम से जानते हैं तो उसके अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। इन सम टाइम्स आपके पास वो प्री इंस्टॉल्ड फॉर्म के अंदर भी आपको मिल जाते हैं लाइसेंस वर्जन की शक्ल के अंदर, ठीक है जी। तो दोनों बातें, तो बात क्या थी कि एनी हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर। तो हम जरा इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर, ठीक है जी। The operating system is a vital component of the computer system in order to get functions out of it, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज दी वाइटल कंपोनेंट। वाइटल का मकसद वही जिंदगी, वही लाइफ है। वाइटल से मुराद हमारी लाइफ है अगर हम लफ्जी मायनों में जाएं तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट एक्चुअली ब्रिंग इन द लाइफ इनटू दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर। हम उसको इस्तेमाल करने के काबिल बना पाते हैं जब हम उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। बेटा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैंने इसके अंदर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से इनिशियल छोटी सी छोटी चीज़ को कवर करने की कोशिश की है और मैं अपने इसी लेक्चर के अगले पार्ट के अंदर इसको यहाँ से सिंपल से डिटेल की तरफ लेकर के जा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आते हैं जनाब हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो हमने क्या देखा, जब कंप्यूटर्स बना लिए गए, कंप्यूटर्स डेवलप कर लिए गए, ठीक है जी, हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर डेवलपमेंट का सिलसिला आगाज हो गया तो हमें एक चीज़, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पेश आई। उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पेश आई कि जो कि हमारे सिस्टम को प्रॉपर तौर पे मैनेज कर सके, प्रॉपर तौर पे हमारे सिस्टम को हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें इस्तेमाल करने के काबिल शक्ल में प्रोवाइड कर सके। तो लोगों ने, रिसर्चर्स ने, डेवलपर्स ने सोचा कि यार ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। तो एक चीज़ जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं उसकी डेवलपमेंट की तरफ काम शुरू हुआ। और अगर हम देखते हैं हिस्ट्री के हवाले से तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर फर्स्ट डेवलप इन द लेट 1950s, ठीक है जी। तो लेट 1950s के अंदर हमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हिस्ट्री देखें या इसकी रूट्स देखें तो मिलती है। मकसद क्या था? टू मैनेज द टेप स्टोरेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम was first developed in 1950s। उसके बाद जनाब IBM 701 जिसको जनरल मोटर्स रिसर्च लैब में इम्प्लीमेंट किया गया, ये इसका पहला इम्प्लीमेंटेशन था। मिड 60s के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया गया, डेवलप किया गया, एडवांस किया गया और उसको डिस्क वगैरह के अंदर इंस्टॉल करके यूज करने की कोशिश की गई। लेट 1960s के अंदर हमें फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन है डेवलप फॉर्म के अंदर हमें नज़र आता है। उसके बाद हमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मिलता है और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जी हाँ, डॉस जिसको कहा जाता है, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। उसके बाद जनाब हम बात करते हैं तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता बल्कि डॉस के बाद हमें फिर एक और विंडोज़ बेस्ड इन्वायरमेंट हमारे सामने आती है। डॉस और विंडोज़ अगर हम बात करते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपके पास। डॉस वॉज दी आपके पास CLI काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जी हाँ, CLI से मुराद हमारे पास है कमांड लाइन इंटरफेस।
आपके पास कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डॉस में नहीं मिली हमें, बल्कि वहाँ पे जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था वहाँ पे कमांड्स को रखा गया था। कोई भी जो प्रोग्रामर था या जो भी कंप्यूटर यूजर था उसके लिए नेसेसरी था कि जनाब वो उस कमांड लाइन को इस्तेमाल करे और फिर सिस्टम के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा याद रखिएगा हमें एक कंप्लीट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जी हाँ, मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक कंप्लीट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, मैं भी हिस्ट्री से थोड़ा सा अगले अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा तो मैं वहाँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मज़ीद बातें बताऊँगा जिससे आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग में आसानी पेश आएगी। ठीक है जी, तो इस वक्त तक आप हिस्ट्री को गौर से समझिएगा। हिस्ट्री यकीनन ज़रूरी होती है आपके पास, इसलिए मैंने हिस्ट्री को यहाँ पे इंक्लूड किया कि मैंने आपसे कहा ना कि मैंने बिल्कुल सिंपल से हम आहिस्ता 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 ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी डिटेल्स की तरफ स्लोली ग्रेजुअली मूव करेंगे। तो हम बात कर रहे थे डॉस के हवाले से। तो डॉस जो था हमारे पास, जिसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, was the command line interface CLI। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, CLI से मुराद है हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस। CLI जो है हमारे पास एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है जहाँ पे जो प्रोग्रामर है, जहाँ पे जो यूजर है, वो वहाँ पे आपके पास कमांड्स को इस्तेमाल करता है, कमांड सिस्टम को प्रोवाइड करता है और फिर सिस्टम अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कमांड जो कि यूजर की तरफ से यूज की गई है उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। इट वॉज अ बिट टेक्निकल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। जी हाँ, अब इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन बात ये थी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको इस्तेमाल करना है यूजर ने, तो उसके लिए लाजमी था उस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से कि उसको कमांड्स इस्तेमाल करना और कमांड्स की आगाही होना, यानी कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, किस एक्टिविटी के लिए कौन सी कमांड की ज़रूरत होती है, उस सब का इल्म होना, मालूम होना और प्रॉपर सिंटैक्स के हवाले से उसको कंप्यूटर के अंदर उस इन्वायरमेंट में यूज़ करने के बारे में कुछ टेक्निकल नोहाव का होना लाजमी था। फिर ये जो इन्वायरमेंट थी दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल काइंड ऑफ यूजर्स के यार, जो कि सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते थे तो उनको एक टेक्निकल एक्सपर्टीज की ज़रूरत पेश आती थी कि वो उस कमांड को इस्तेमाल कर सकें, चला सकें। तो जनाब फिर हुआ क्या कि विंडोज़ यानी जो माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने एक विंडोज़ नामी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट के अंदर लेकर के आया जो कि कदरे आसान था और उसने एकदम से पॉपुलैरिटी गेन करी। जी हाँ, पॉपुलैरिटी गेन करने की वजह क्या रही उस ऑपरेटिंग सिस्टम की कि इंस्टेड ऑफ दी CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, इट वाज अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर को इस हद तक लिबर्टी प्रोवाइड की गई थी कि भाई कोई कमांड ना लिखें, बल्कि क्या करें, आपके पास वहाँ पे एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगी, एक आपको स्क्रीन मिल जाएगी, एक इंटरफेस मिल जाएगी और आप सिंपल पॉइंट एंड क्लिक इन्वायरमेंट के अंदर दाखिल हो जाएंगे जहाँ पे आपके पास कमांड के बजाय माउस को इस्तेमाल किया जाएगा और सिंपल आप क्लिकिंग से वो तमाम के तमाम काम जो पहले इंस्ट्रक्शंस के जरिए किए जाते थे, अब वो यूजर को आसानी प्रोवाइड कर दी गई कि वो उस सिंपल क्लिक एंड पॉइंट इन्वायरमेंट के अंदर जाए, किसी कमांड को इस्तेमाल किए बगैर अपने कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने की बात करें। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम आते हैं जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। जनाब तो ऑपरेटिंग सिस्टम के वही डेफिनेशन को देखते हैं। An operating system is a software which acts as an interface between the end user and the computer hardware। हमने क्या बात करी, पहली लाइन क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज द इंटरफेस। इंटरफेस कहते हैं जनाब एक ऐसी इंटरमीडिएरी चीज, इंटरमीडिएट लेयर जो कि दो लोगों के दरमियान में मोड ऑफ कम्युनिकेशन का जरिया बने, यानी कि हम उसके जरिए कमांड्स दे भी सकें और उसका जो आउटपुट है उसको रिसीव भी कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक बीच में एक एज एन इंटरफेस काम कर रहा होता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान में। मिसाल ये है कि जनाब हम अगर थोड़ी देर के लिए सोचें इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर हम अपने सिस्टम्स में से, जैसे मैंने पहले कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल लें,
तो क्या आप अपने सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाएंगे? क्या कोई इंस्ट्रक्शन, क्या कोई कमांड आप अपने कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर में मौजूद हार्डवेयर को दे पाएंगे? हरगिज नहीं। क्या जो कंप्यूटर हार्डवेयर आपकी कोई भी बात, आपको कोई भी चीज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहता है तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। बात याद रखिएगा, मैंने कहा इन द एब्सेंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या बात हमने सीखी कि अब इंटरफेस का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडक्ट कर दिया। इस एनवायरनमेंट में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के आ गए। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आया, आपको फौरन से आज के ज़माने के हवाले से एक ग्राफिकल इंटरफेस मिल गया। अब जो अगर आप कोई चीज़ सेव करना चाहते हैं तो बिल्कुल बआसानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एज एन इंटरमीडिएट इंटरफेस इस्तेमाल करते हुए आप जाते हैं, ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं, डेटा को सेव कर देते हैं। उस ड्राइव से डेटा आपको रिक्वायर्ड है, आप जाते हैं सिस्टम में, जाते हैं, ड्राइव को क्लिक करते हैं, फाइल आपको नजर आती है, फाइल को क्लिक करते हैं, फाइल आपकी स्क्रीन के ऊपर यानी GUI के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है। तो ये सारा का सारा काम कर कौन रहा है? इन एप्लीकेशंस को, इस एनवायरनमेंट को मैनेज कौन कर रहा है? तो इस चीज को मैनेज करने वाली, हैंडल करने वाली चीज है, वो है जनाब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ना सिर्फ आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम is developed to manage the other application programs as well। तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कहता हूँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोबारा सुनिएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को के दरमियान यूजर को लेकर के चीजों को आगे पहुंचाने तक, चीजों को आगे मैनेज करने तक, ठीक है जी, अपना रोल या अपना किरदार अदा कर रहा होता है। हमारे पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा हो, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक उसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट भी कर रहा होता है और आपके हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट कर रहा होता है। सॉफ्टवेयर से मुराद मेरी यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं MS वर्ड की बात करते हैं, हम किसी गेम की बात करते हैं, या फिर आपके पास मौजूद इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए क्रोम काइंड ऑफ ब्राउजर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मकसद क्या हुआ कि ये सारी की सारी एक्टिविटी एक ही प्रोग्राम रन कर रहा है और उस प्रोग्राम का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं जनाब, हम इस चीज़ को अब समझ चुके हैं कि जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि अलाउ करता है अपने ऊपर कि वो हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट कर सके और डिफरेंट एप्लीकेशंस उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो सके। जी हाँ, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन रन हो सके। रन होने से मुराद क्या है कि आप ये सोच लीजिए कि मुझे बताइए कि अगर क्या आपके पास विंडोज़, जिसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, अभी मैंने आपके सामने नाम रिकॉल किया था जब हम हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, तो अगर आपके सिस्टम में विंडोज नहीं है तो क्या MS वर्ड रन हो सकता है? हरगिज नहीं। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रेजेंस आपके कंप्यूटर में नहीं है तो क्या आपका कंप्यूटर सिस्टम लाइव हो सकता है? हरगिज नहीं। तो ये है जनाब इसकी एक मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रेजेंस, जो अपने आप को खुद मनवा रही होती है। वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही होती है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट कर पाएँ और आप जो मौजूद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनसे भी आप वाया ऑपरेटिंग सिस्टम चैनल पहुंच पाएँ और उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है जी, चलो जी। अब अगर हम देखते हैं तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर आपके लिए स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि डायग्राम आप देखते हैं जो नज़र आ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, बीच में आपके पास एक इंटरफेस के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और थर्डली आपके पास एंड यूज़र होता है। तो ये बात जो ऊपर बयान की गई थी उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है कि अगर हार्डवेयर ने भी कम्युनिकेट यूज़र से, तो बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम से होके जाना पड़ेगा। और अगर एंड यूज़र ने भी कोई चीज़ अगर अपने हार्डवेयर तक पहुंचानी है, यानी कि प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, स्टोरेज में कोई डेटा मौजूद है, उसको एक्सेस करना है, तो भी उसमें दरमियान में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आ रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्चुअली द इंटरमीडिएट बिटवीन
the hardware and the end user, and it is actually a platform जहाँ पे हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो सकते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास अब हम मूव करते हैं जनाब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मेन टास्क के हवाले से बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि बड़ा जनरल सा मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है जी। बड़े सिंपल से स्लोली ग्रेजुअली मैं टेक्निकल चीज़ों की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इस राइटअप को जो इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर आप देखें तो मैंने थोड़ा सा और उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ रिलेटिंग टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने और थोड़ा सा और टेक्निकल अंदाज में बयान करने की एक कोशिश की है। An operating system is a software which performs all the basic tasks like, अब हम यहाँ पे उन टास्क का जिक्र कर रहे हैं जो टेक्निकली ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्निकल काम हो सकता है, ठीक है जी। तो बेसिक लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, process management, handling input and output, and controlling the peripheral devices such as disk drive and the printers। जी हाँ, तो ये हमारे पास peripheral devices में अपने initial lectures के अंदर जब मैं input and output devices आपको पढ़ाया था, तो उस वक्त मैंने peripheral device जो था मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को, ठीक है जी। तो peripheral devices को भी कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल्स को मैनेज करने में, मेमोरी को मैनेज करने में, प्रोसेस यानी एक्टिविटीज को मैनेज करने में, इनपुट एंड आउटपुट को हैंडल करने में, इस सारा का सारा किरदार, सारी की सारी जॉब जो है वो आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। अब अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स कुछ नजर आ रहे होंगे। जी हाँ, तो हमारे पास कुछ एक नहीं बल्कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ उसका जो मार्केट शेयर है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हवाले से वो आपके पास इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा। ये कुछ मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट जो कैप्चर कर रखी है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ने, मैंने उसकी छोटी सी पिक्चर आपको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो ये वो एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर उसकी एक रिप्रेजेंटेशन, इसको देख लीजिएगा, जिसके अंदर हमें विंडोज भी नजर आ रहा है, iOS भी नजर आ रहा है, एंड्रॉइड भी नजर आ रहा है, और हमारे पास मैक ओएस भी हमें नजर आ रहा है, ठीक है जी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। और अदर्स का जो शेयर है वो तकरीबन आपके पास 2% है हमारे पास, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जैसे मैंने ऊपर एक डायग्राम में बताया, चंद नाम लिए हमने, तो जरा उन नामों से कुछ फेमिलियरिटी के अंदाज में चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास चंद एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। अब मैंने एग्जाम्पल्स को यहाँ पे बेटा शामिल स्टूडेंट्स इसलिए किया है कि यू मे हैव अ सिंपल क्वेश्चन इन योर पेपर कि जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राइट सम एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जनाब ये उसका जवाब आपके पास आ गया। उसके अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिफाइन किया, आपने उसके शेयर को भी डिस्कस किया, और आपने उनके नाम भी लिखे और उनके बारे में 2-3 लाइनें भी लिखी। आपके सवाल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। कोई 15-20 नंबर का सवाल नहीं आता, आपने खुद पेपर को अगर आप गो थ्रू करें, जो आपके पास जो प्रीवियस पेपर्स यूनिवर्सिटी के अंदर या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के अंदर कंडक्ट किए गए हैं, तो वहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाएगा कि आपके पास सही, करेक्ट, टू द पॉइंट और स्पेसिफिक मालूमात जो है एग्जामिनर आपसे चाह रहा होता है, रिक्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल्स के हवाले से आते हैं। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इन जनरल समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री को डिस्कस किया, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनके नाम अभी हमारे पास हैं, इनके शेयर्स को हमने पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर लिखा। ऑपरेटिंग सिस्टम का किरदार क्या था कि वो एक इंटरमीडिएट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा था बिटवीन फॉर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फॉर दी हार्डवेयर टू ऑपरेट ऑन, ठीक है जी। चलिए, तो हम आते हैं जनाब चंद मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हवाले से जो नाम हम पढ़ने जाए, दैट इज दी मैक, MAC, मैक पढ़ते हैं जनाब, मैक OS, ठीक है जी। मैक OS का मकसद क्या है जनाब, ये आपके पास एप्पल, जी हाँ नाम सुना हो शायद आप लोगों ने, एप्पल जो हमारे पास हार्डवेयर डेवलपर है, ठीक है जी। आपके पास एप्पल के फोन्स भी होते हैं, हमारे आपके पास एप्पल के सिस्टम्स भी होते हैं, आपके पास एप्पल के लैपटॉप्स भी होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है, हार्डवेयर आपके पास है जो कि एप्पल के नाम से मार्केट में अवेलेबल
होता है। तो उस हार्डवेयर जो एप्पल के जो सिस्टम्स हैं उनको रन करने के लिए, ठीक है जी, यानी कि एप्पल वाले कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मैकिन्टोश कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास इन मैकिन्टोश कंप्यूटर्स को, फॉर्मली मैकिन्टोश के नाम से, अब मैक्स के नाम से हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया, और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे इन मैक बेस्ड पीसीज के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर चल रहा होता है, वो हमारा मैक ओएस होता है, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम आते हैं जनाब अपने अगले इस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, विच इज एक्चुअली द लिनक्स। तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, लिनक्स। लिनक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, it is the open source, the open license model, and the code is available for study and modification. हमारे पास जब हम बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। लाइक द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स is again the one of the most popular operating system। जी हाँ, जिस तरह से विंडोज एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी लिहाज से लिनक्स का भी मार्केट में एक अच्छा खासा शेयर है। जहां हम बात करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट की जगह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर किया जाता है। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास एक GUI बेस्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जी हाँ, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI बेस्ड एनवायरनमेंट जो है अब वो लिनक्स में देखने को मिलती है। क्योंकि यूजर आपके पास फेमिलियर होता गया विंडोज के आ जाने के बाद कि वो सिंपल पॉइंट एंड क्लिक एनवायरनमेंट पे मूव करें, चीज़ें उसके लिए मैनेज करना इंतहाई आसान हो, तो इस चीज़ को लिनक्स ने अंडरस्टैंड करते हुए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को उस शक्ल में ढाल दिया, और लोगों ने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लिया और उसको एक्सेप्ट किया, और लिनक्स ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया। इतनी बातें मैंने लिनक्स के ऊपर कर दी, लेकिन मैंने उस सिक्योरिटी वाली बात को अभी तक डिस्कस नहीं किया। जी हाँ, तो सिक्योरिटी से मुराद क्या है, ये लिनक्स के एक शेयर को मार्केट के हवाले से कैप्चर करने का जो मेन रीजन रहा, दैट वाज द सिक्योरिटी फीचर विच लिनक्स प्रोवाइड, एंड नंबर 2, इट इज एक्चुअली द ओपन लाइसेंस मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन लाइसेंस मॉडल से मुराद हमारे पास क्या है कि आपको किसी भी लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं है। लिनक्स आपको एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद जा करके कस्टमाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। जी हाँ, मैंने कहा आप वहां जा करके उसके कर्नल या नटशेल प्रोग्रामिंग के अंदर जा करके आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। कोडिंग्स को आप अपनी मर्जी के मुताबिक हैंडल कर सकते हैं। आपको जो फीचर चाहिए आप एक लिनक्स के अंदर प्रोग्रामिंग करके उस फीचर को एनहांस कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। जी हाँ, तो दिस इज द मेन रीजन कि लिनक्स ने आपके मार्केट को कैप्चर किया, सिक्योरिटी, क्योंकि एक ऐसी चीज जो कि आप खुद डिजाइन कर रहे हैं तो उसके फीचर्स आप ही को पता है, दूसरे को उसको डीकोड करने में टाइम लगेगा। अगर 4 लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स मौजूद हैं इस वक्त और चारों के अंदर अलग अलग लिनक्स नटशेल के हवाले से प्रोग्रामिंग की गई है, इसका मकसद क्या है कि अगर कोई डेटा हैक करना चाहता है तो उसको 4 डिफरेंट सिस्टम्स को हैक करने के लिए 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना पड़ेंगे। वेयर एज अगर हम बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा कॉमन है कि आप उसके पूरी की पूरी आर्किटेक्चर को कोई सही से अंडरस्टैंड कर ले तो वो आपके पास वो सारे के सारे ग्रे एरियाज आ जाते हैं सामने, मोर और लेस, जिनको कोई भी हैकर टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से जो सिक्योरिटी वाला जो फीचर था वो लिनक्स के अंदर एक वैल्यू एडेड एडवांटेज के तौर पर शामिल हुआ, जो कि प्रोवाइड हुआ, लोगों को हासिल हुआ उसकी प्रोग्राम की मॉडिफिकेशन करने के हवाले से या एम्पावरमेंट की वजह से। उसके बाद जनाब हमारे पास आता है जनाब वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज दी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हमें नजर आई, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम विंडोज 3.1 और हमारे पास विंडोज 10 इज द लेटेस्ट वर्जन, जो कि आज हम विंडोज 10 अपने सिस्टम्स के अंदर, अपने लैपटॉप्स के अंदर यूज कर रहे हैं। द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाज फर्स्ट रिलीज इन 1985। जी हाँ, पहले का कब रिलीज किया गया था, 1985 में जो है विंडोज का जो फर्स्ट वर्जन है वो मार्केट में या मंजर आम पर लेके आया गया था।
जनाब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से चंद बातें करते हैं जनाब कि जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी क्या मेन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्या अहम काम या क्या एक अहम जिम्मेदारियां हो सकती हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि उसने एक यूजर को प्रोवाइड करनी होती हैं, एक सिस्टम लेवल पे हैंडल करनी होती हैं। यानी वो कौन से अहम काम हैं, वो कौन से अहम एक्टिविटीज हैं जो कि जिम्मेदारी बन जाते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर से। जी, दूसरे सॉफ्टवेयर से मकसद क्या हुआ कि ये वो फीचर है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का खासा हो सकता है, जो कि किसी और एप्लीकेशन में नहीं होते, किसी और गेम में नहीं होते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये बुनियादी चीज़ें, ये बुनियादी खासियत, ये बुनियादी खुसूसियत जो है वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाती है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं तो सिक्योरिटी। बाय मीन्स ऑफ द पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द प्रोग्राम एंड द डेटा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिक्योरिटी के फीचर को अपने अंदर इम्बेड किए हुए। पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होती है, ताकि किसी भी किस्म के अनऑथराइज्ड एक्सेस को, कंप्यूटर को एक्सेस करने से और कंप्यूटर में मौजूद डेटा को एक्सेस करने से रोका जा सके। अब जब आप अपनी विंडोज को लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको विंडो नजर आती है वो कहता है जनाब पासवर्ड बताइए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करता आप ही के लैपटॉप में किसी भी चीज या किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल आप उधर उस पासवर्ड को उस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप ना करें। दैट इज द फीचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जनाब ठीक है, आपका घर है, हमें मालूम है, लेकिन अगर आप कहते हैं, क्लेम करते हैं कि ये आपका घर है, तो जनाब आपके पास की तो होगी ना, आपके पास उस घर की चाबी तो होगी ना। तो वो जो चाबी है वो क्या है आपके पास, आपके कंप्यूटर के लिए, आपके कंप्यूटर के लिए वो की टू एंटर इन योर सिस्टम इज द पासवर्ड। एंड नोबडी हु इज नॉट द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर घर, हाउस, या फिर उस पीसी का जो मेन ओनर अगर नहीं है, पीसी उसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो एक अनऑथराइज शख्स है और उस अनऑथराइज शख्स को ऑपरेटिंग सिस्टम हरगिज इजाजत नहीं देगा कि वो उस सिस्टम के अंदर दाखिल हो सके। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम भी है कि जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको भी मैनेज करें। अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन अपने इनपुट डिवाइस के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं और वहां से जो आउटपुट जनरेट होकर के आ रही है, तो रिस्पॉन्सेज को भी वो मैनेज करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब अकाउंटिंग, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर किस्म की जॉब, हर किस्म की एक्टिविटी जो सिस्टम परफॉर्मेंस के हवाले से हो, कंप्यूटर को प्रोवाइड की जा रही हो, उन जॉब को भी वन बाय वन मैनेज कर रहा होता है और उन जॉब्स का ट्रैक अपने पास रखा होता है। मिसाल के तौर पे मैं इसको इस तरीके से आसान थोड़ा सा कर देता हूँ। मान लिया कि आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपके पास एक प्रिंटर है, और 10 लोग उस प्रिंटर से कोई भी चीज़ प्रिंट आउट की शक्ल में, हार्ड कॉपी की शक्ल में हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर 10 के 10 ने एक साथ प्रिंट की कमांड दे दी तो आपका प्रिंटर उस चीज़ का प्रिंट आउट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के लिए ये एक जॉब है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक जॉब कंसिडर करेगा और हर पीसी से आने वाली जॉब को, उसका वो ट्रैक रिकॉर्ड मैनेज करेगा, उसको वो टाइम फ्रेम प्रोवाइड करेगा और उसकी जॉब को जो एक हार्डवेयर से डेवलप की गई है वो दूसरे हार्डवेयर या दूसरा पैराफेरल डिवाइस जो कि प्रिंटर है उस तक वन बाय वन उस तक पहुंचाएगा। और फिर आप तमाम के तमाम जो लोग थे जिनको वो प्रिंट आउट या हार्डवेयर हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड थी, उनको वो चीज़ डिजायर्ड फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से एक्टिविटीज को मैनेज करना, जॉब्स को मैनेज करना इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्शन, जी हाँ, अगला पॉइंट है हमारे पास एरर डिटेक्शन। अगर सिस्टम में कोई एरर्स आ जाते हैं तो वो एरर मैसेजेस भी आपने अक्सर बेशतर देखा होगा कि वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है, आपको एक विंडो पॉपअप हो जाती है, जनाब ये प्रॉब्लम आ रही है, वायरस को कोई थ्रेट है तो वो देख रहा है, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई इस तरह की मेल फंक्शनिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी हो रही है तो वो आपके पास पॉपअप करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड द यूजर्स, जिसको मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया कि जनाब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर और यूजर्स के दरमियान में एक राब्ते का जरिया बनता है। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल अल्फाज में इसको डिफाइन करने की कोशिश की।
उसके बाद जनाब हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फर्मवेयर और हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ डिफरेंस को इंक्लूड करने का मकसद यही है ताकि आप उस चीज़ को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाएँ कि फर्मवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जस्ट बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखी है कि फर्मवेयर क्या होता है कि एक ऐसा कोड जो कि मैन्युफैक्चरर किसी चिप में इंटीग्रेट कर देता है, एम्बेड कर देता है, रख देता है, वो आपका फर्मवेयर है। फर्मवेयर आपके पास नॉन वोलेटाइल में रखा जाता है, whereas the operating system is the thing which is installed in your hard drive, और हम इसको एक प्रॉपर प्रोग्राम की शक्ल के अंदर हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था छोटा सा फर्मवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, चीज़ों को कंक्लूड करने की बात करते हैं, दी एडवांटेजेस ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, अगर हम एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। जी हाँ, हमें एक GUI बेस्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफर्स एन एनवायरनमेंट इन विच अ यूजर मे एग्जीक्यूट प्रोग्राम देन दी एप्लीकेशन। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता या नहीं है तो हम किसी भी एक प्रोग्राम को या किसी भी एक एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते। पहली चीज़ क्या थी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बड़ी हमें एक रंगीन सी एक स्क्रीन नज़र आती है जिसपे आइकन्स हमारे पास मौजूद होते हैं। उन आइकन्स को जाके हम क्लिक करते हैं और हम अपनी उस एप्लीकेशन प्रोग्राम, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाते हैं। वो एनवायरनमेंट कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, वो चीज़ एग्जीक्यूट होकर के हमारे पास रन होकर के स्क्रीन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाती है। तीसरा पॉइंट जनाब, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेक श्योर दैट द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। जी हाँ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक खास एडवांटेज ये भी होता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस हद तक सिंप्लीफाइड रखा जा सके कि हर शख्स बआसानी इसको इस्तेमाल भी कर सके। यूजर फ्रेंडलीनेस वाला जो है एलिमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रखा जाता है। ये नहीं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखने के लिए फिर कहीं दाखिला लेना पड़े, किसी इंस्टीट्यूट में किसी टेक्निकल कोर्स की तरफ जाना पड़े। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम इट इटसेल्फ कोशिश करता है कि मैं इतना सादा, इतना सिंपल हूँ कि बआसानी अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ माइग्रेट किया जाए, एक पुराने वर्जन से नए वर्जन की तरफ जाया जाए, या फर्स्ट टाइम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI आपके सामने आए तो इट शुड बी सो मच यूजर फ्रेंडली कि वो बआसानी एक यूजर उसको इस्तेमाल करने के काबिल हो सके। ठीक है जी, अगला पॉइंट जनाब, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट अमंग द एप्लीकेशंस एंड द हार्डवेयर कंपनीज। ये हमने डिटेल में इसको सीखा कि वो एज एन इंटरमीडिएट एक्ट कर रहा होता है बिटवीन द एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर जो आप इस्तेमाल करते हैं और द हार्डवेयर। ठीक है जी, हमारे पास इट प्रोवाइड द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज विद इजी टू यूज फॉर्मेट। जनाब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम को एक फाइल्स को मैनेज करने के लेवल पे, रिसोर्सेज को स्टोर करने के लेवल पे डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज को बआसानी एक्सेस करने का जरिया बन रहा होता है। ठीक है जी, और हमारे पास जो है एज एन इंटरमीडिएट, एज एन फैसिलिटेटर बिटवीन दी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम, सॉफ्टवेयर या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्ट कर रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दी ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक्स के हवाले से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को डिस्कस करूंगा, व्हाट आर द फंक्शंस और द फीचर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो बात अभी रुकी नहीं है, बात ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको जरा गौर से गो थ्रू कर लीजिएगा, और फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेरा इंशाल्लाह वल अजीज नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। आई होप चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क मी क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा और अगले टॉपिक जो कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से उसका इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी अगली ही वीडियो के अंदर आपके पास उस फंक्शंस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।